everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs for December first week. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the Russian President Putin's visit to India. So what Putin's visit to India achieved? So first of all, what is the context here? So after the Ukraine war began, this is his first visit. This was his first visit to India, and this was a highly ceremonial type of visit in the sense that it signaled India's intent to preserve and stabilize its standing relationship and partnership with Russia. Okay, amid you can say this was in context with the shifting global alignments, particularly in respect of the Western sanctions as well as the US-India trade negotiations. Now let's discuss what were the key outcomes of this visit. So first of all, देर वर एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्ट किया गया था यहाँ पर बहुत मेजर डिफेंस डील्स होंगी, बट द विजिट प्रोड्यूस्ड मोडेस्ट, we can say that the outcomes, the agreements, they were modest in nature. ठीक है, modest in nature as compared to some major overhauls that were expected. तो जो important agreements हैं, in that number one is the labor mobility pact. This was to basically address Russia's skilled workforce shortage. Second, there were MOUs signed on maritime cooperation, port logistics and customs facilitation. थर्ड, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ दैट विल लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन यूरिया प्लांट इन रशिया, एंड देर वाज आल्सो कमिटमेंट टू ऑपरेशनलाइज द चेन्नई व्लादिवोस्तोक maritime corridor as well as to strengthen the international north-south ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि देर वॉज नथिंग सिग्निफिकेंट एंड बोथ द साइड्स दे रीअफर्म्ड देयर इंटेंट टू इंक्रीज द ट्रेड सेटलमेंट in national currencies. So there was no major outcomes or announcements made with respect to oil procurement or defense and then nuclear energy और आपका स्पेस कोऑपरेशन. तो ये सब जो एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड थे, दीज वर मिसिंग. ठीक है, अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, देर वॉज अ एलिमेंट ऑफ द रोल ऑफ द यूक्रेन वॉर. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर यूक्रेन वॉर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया की क्या पोजीशन है. सो इंडिया रीइटरेटेड इट्स पोजीशन ऑफ सपोर्टिंग पीस. ठीक है, रादर देन ऑलवेज शोइंग न्यूट्रलिटी, इंडिया ने कहा वी ऑलवेज सपोर्ट पीस. ठीक है, नाउ सेकेंड इज there were other concerns, like you can say concerns of over possible US CAATSA sanctions. ठीक है, ये कंसर्न था. देन जो रशिया की डिफेंस कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, इट हैज़ स्लाइटली रिड्यूस ड्यू टू द वॉर. ठीक है, एंड देन इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई. नाउ it is moving away from the Russian military hardware, so that can be one reason why the defense outcome was not on expected lines. And then finally the sensitivity to the European as well as the US diplomatic scrutiny as well as pressure. ठीक है, लेकिन दिस पर्टिकुलर विजिट इट हैज़ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस विज़िट का कंटेक्स्ट देखो, टाइमलाइन देखो. जब इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, एंड इट इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ होस्टिंग अ नंबर ऑफ वेस्टर्न लीडर्स. तो वो एक चीज़ ध्यान रखनी है. सो इंडिया ने वही अप्रोच अपनाई है कि वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट. We have to preserve our defense as well as geopolitical ties with Russia, and at the same time we also have to advance our economic and technological partnership with the West. So that has been the approach of India during this visit. Now the moving ahead, so जो अब रशियन प्रेसिडेंट थे पुतिन, ही विजिटेड इंडिया accompanied by a large न्यूक्लियर दिस इंडस्ट्री डेलीगेशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, दैट इंडिया इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी.
ठीक है। तो उसके दो रीजंस हैं, एक तो इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो आर मूविंग टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो एंड न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑब्वियसली हैज़ बीन अ कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडिया रशिया टाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पर रशिया की क्या ऑफरिंग्स थी, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, वन इज़ योर SMRs, ठीक है, विच आर द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। सेकेंडली ये बेसिकली यूज़ होंगे आपके रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, रिमोट रीजन्स के लिए, इंडस्ट्रियल रीजन्स के लिए, एक्सेट्रा, डाटा सेंटर्स के लिए। और दूसरा है आपका नेक्स्ट जनरेशन लार्ज रिएक्टर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ VVER 1200। फिर ये जो आपके ऑलरेडी VVER 1000 यूनिट्स हैं कुंदन कुलम में, उसके बियॉन्ड दे विल इंक्रीज़ द कैपेसिटी। तो ये जो दो चीज़ें रशिया ऑफ़र कर रहा है इंडिया को, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या न्यूक्लियर कैपेसिटी है। सो इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी, तो हमारा एम है कि जो 7.9 गीगावाट है, वी नीड टू इंक्रीज़ इट टू 100 गीगावाट बाय 2047, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर बोथ लार्ज रिएक्टर्स विच विल बी अवेलेबल फॉर योर ग्रिड लेवल सप्लाई एज वेल एज द SMRs विच विल बी बेसिकली फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर डिप्लॉयमेंट लाइक आई टोल्ड यू फॉर स्मॉलर पर्पजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट आर SMRs, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लार्ज रिएक्टर्स और फ्रॉम द थर्मल पावर एनर्जी। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स द कैपेसिटी रेंज हेयर इट इज़ अप टू 300 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पर आपका लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इट इज़ 1000 प्लस, तो दे आर यूज फॉर ग्रिड स्केल एंड थर्मल पावर विच आर कोल्ड बेस्ड 500 to 1000। तो अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, दिस यू कैन ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ टेबल लाइक दिस इन 3 कॉलम्स। अगर दो SMR वर्सेस आपसे LR पूछा गया है, तो इन 1 कॉलम यू कैन मेंशन द पैरामीटर्स एंड इन द अदर 2 कॉलम्स यू कैन मेक SMR वर्सेस लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये तो हो गया कैपेसिटी रेंज। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल, दीज आर बेसिकली फैक्ट्री बिल्ट यूनिट्स एंड दे आर स्केलेबल, जबकि आपके जो लार्ज स्केल होते हैं दे आर बिल्ट ऑन द साइट एज लार्ज सिंगल प्रोजेक्ट, तो वो आप उसको स्केल नहीं कर सकते। सिमिलरली योर थर्मल पावर प्लांट्स आर देयर, सो द कंस्ट्रक्शन टाइम दे यूजुअली टेक 3 to 5 years, SMRs, and your large reactors they take obviously a longer time, and the thermal power plants moderate, right? तो कार्बन एमिशंस ऑब्वियसली नियर ज़ीरो, न्यूक्लियर है तो कम ही होगा, एंड इन केस ऑफ थर्मल द इट विल बी हाई, ठीक है। तो द फ्यूल सोर्स इन बोथ द केसेस इज एनरिच्ड यूरेनियम एंड हेयर इट इज़ कोल। सो these are some of the factors on the basis of which you can make a differentiation here। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर होने का क्या एडवांटेज है और लार्ज न्यूक्लियर रखने का क्या एडवांटेजेस है। वी रिक्वायर बोथ, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट इज़ द मसाला बॉन्ड्स। सो यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म। देखो, जब इंडिया इट रिक्वायर्स मनी, ठीक है, इट रिक्वायर्स मनी, वी हैव ह्यूज डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, तो हमें सेंट्रल लेवल पे पैसे चाहिए, एट द सेम टाइम वी आल्सो नीड मनी एट द स्टेट लेवल आल्सो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट आर दीज मसाला बॉन्ड्स, पहले ये समझते हैं। सो दीज आर बेसिकली नथिंग बट रुपी डिनोमिनेटेड ऑफशोर बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो इंडियन एंटिटीज़ हैं वो इसको बॉन्ड को दे विल बी इशूइंग दिस बॉन्ड इन द फॉरेन मार्केट्स। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपने ये बॉन्ड इशू किया, जो वहाँ से आप उठाओगे पैसा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़। So these are rupee denominated. These are not foreign currency denominated. जैसे foreign currency में dollars हुआ, euros हुआ, तो यहाँ पर unlike those foreign currency bonds, these masala bonds they collect, repay and earn interest entirely in the form of Indian rupees. अब इसका क्या फ़ायदा होता है? So this helps Indian issuers to tap this global liquidity without facing the pressure of this domestic currency. वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, वॉलेटिलिटी मैटर नहीं करती है, राइट। सो अब ये क्यों इशू किया था आपके RBI ने? सो द RBI अप्रूव्ड देयर यूज अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रेमवर्क बिकॉज दे वांटेड टू डीपन इंडियाज
दिस करेंसी, इंडियन करेंसी का जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने का था, ठीक है। दूसरा, हमें अपनी फंडिंग को डाइवर्सिफाई करना था बियॉन्ड द डोमेस्टिक बोरोइंग कंस्ट्रेंट्स। सो देयर वर टू मेजर रीजंस ऑफ दिस रूपी डिनोमिनेशन, ठीक है। अब क्या इशू हुआ है, सो दिस इज द कंसेप्चुअल बैकग्राउंड। द इशू नाउ इज दैट आपका केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, ठीक है, इन्होंने मसाला बॉन्ड को इशू किया 2019 में, रेजिंग अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीस। तो ये लिस्टिंग हुई इसकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, एंड दे वर गिविंग सर्टन इंटरेस्ट से 9.7 समथिंग, ठीक है। तो अब फर्स्ट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी दैट दिस वाज द फर्स्ट सब सॉवरन मसाला बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज दे वर बीइंग इशूड बाय अ स्टेट लेवल एंटिटी, ठीक है। तो अब ये क्यों किया आपके केरला ने, बिकॉज दे वांटेड टू पोजीशन दिस बॉन्ड एज अ टूल टू बाईपास द लिमिट्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू बाईपास द लिमिट्स ऑन द स्टेट बोरिंग्स विच आर सेट बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू फंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। बट जैसे ही इन्होंने इशू किया इट सून केम अंडर द सिक्योरिटी ऑफ रेगुलेटर्स, चाहे वो आपका कैग हो, कैग ने इस पे सवाल उठाए, ठीक है, कि आपने बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के कैसे ये चीज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद आपका ईडी ने इसके ऊपर सवाल उठाए, ठीक है। इवन द आरबीआई, इट सेज दैट द आरबीआई रूल्स दे आर बाईपासिंग दिस। तो एक चीज़ और गलती की केरला ने, वट द स्टेट डिड दैट दे यूज द प्रोसीड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस बॉन्ड फॉर लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आरबीआई रूल्स में दैट मसाला बॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ मसाला बॉन्ड का नहीं रहा है, अब ये क्वेश्चन बन गया फिस्कल फेडरलिज्म का। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका फेडरलिज्म के ऊपर, तो यू कैन ड्रॉप दिस एज अ केस स्टडी। कैसे, तो आप ये बोल सकते हो वेदर दिस स्टेट्स दे हैव एन इंडिपेंडेंट, यू कैन से, can they independently mobilize global capital through instruments such as masala bonds, or whether they are completely dependent upon the central borrowing framework for these funds etc. तो वो एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो एज अ केस स्टडी। Next, concerns over the draft ISI bill to 2025. So this ISI bill is nothing but the Indian Statistical Institute Act, ठीक है, the bill of 2025, and it aims to repeal the existing act of 1959, ठीक है। तो बेसिकली ओवर द डिकेड्स देयर इज अ नीड टू रीऑर्गेनाइज द गवर्नेंस, मॉडर्नाइज द फंक्शनिंग, अलाइन इट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इवन द कमिटीज लाइक देयर इज अ कमिटी बाय द नेम ऑफ मशेलकर कमेटी, ठीक है, इन्होंने भी बोला था 2020 में that there is a need to reform this institution for greater global competitiveness. तो little bit background of this ISI. So यहाँ पर क्या था, it was founded in 1931, ठीक है, तो 2031 में इसके 100 years हो जाएंगे, by your PC Mahalanobis, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एंड जो आपके स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग योर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द 1959 एक्ट, एंड इट हैज़ ऑल्सो enjoyed autonomy as a registered society. तो ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड सोसाइटी rather than a centrally controlled statutory body, ठीक है। अब क्या इसमें क्या कंसर्न्स हैं, नंबर 1, एक तो इसकी ऑटोनोमी और एकेडमिक कल्चर अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, चेंज, नंबर 1, चेंज इन द लीगल स्टेटस। नाउ इट विल बी मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, तो आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू बाईपास द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। सेकेंडली, the decision making authority is now being shifted to the board of governors who will be dominated by government nominees. तो पहले क्या था, देयर वाज अ काउंसिल जहाँ पर आपका फैकल्टी डोमिनेट करते थे,
ठीक है, तो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का वहाँ पर रहेगा। देन देर इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू रिसर्च प्रायोरिटीज़। तो वो कह रहे हैं कि जो बिल है, द एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट द फोकस इज मोर ऑन रेवेन्यू जनरेशन थ्रू mechanisms like consultancy fee and then industry linked project etc rather than long term foundational research। ठीक है, तो उसका दिस काइंड ऑफ रिसर्च जो लॉन्ग टर्म होती हैं दे डू नॉट हैव इमीडिएट कमर्शियल वैल्यू, तो ऐसे में इट कैन हिंडर, इट कैन जियोपार्डाइज दोज काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये एक कंट्रोवर्सी है एंड द ओपोजिशन, आपके फैकल्टी हुए, चाहे स्टूडेंट्स हुए, एल्यूमिनाई हुए, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव रेज्ड कंसर्न रिगार्डिंग दिस बिल, राइट। नाउ वाई द रूपी ब्रीच द ₹90 पर डॉलर मार्क। तो अब यहाँ पर क्या है कि यू मस्ट हैव सीन द न्यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन रूपी क्रॉस्ड दिस वैल्यू एंड दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑल्सो कि अब 90s में आ गए हैं। एंड इफ़ यू सी इन 2025 वी हैव सीन अ 5% डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़। नाउ व्हाट आर द की ड्राइवर्स हेयर। सबसे पहली चीज़ है persistent dollar outflows। ठीक है, जो FPIs हैं दे हैव विड्रॉन ओवर 1.48 लाख करोड़ रुपीस सिंस 2025 जाए। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा ट्रेड डील जो आपका इंडिया US ट्रेड एग्रीमेंट है, सो बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद इट द कॉन्फिडेंस दैट हैज़ डिक्लाइंड। ठीक है। थर्ड, ट्रेड डेफिसिट। तो आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव फॉलन 11.8% इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ईयर टू ईयर, और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं दे हैव इंक्रीज 16.6%। ठीक है। फोर्थ, गोल्ड डिमांड बिकॉज ऑफ द हाई सर्च। ठीक है, आपका इंपोर्ट्स दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस ऑल्सो पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज। तो ऐसे में RBI की क्या पॉलिसी रही है, तो RBI हैज़ इंटरवीन्ड वेरी सेलेक्टिवली। ठीक है, तो उन्होंने मैनेज्ड डेप्रिसिएशन अपना अप्रोच रखा है, मैनेज्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमने फिक्स्ड रेट को डिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। हमारा गोल क्या है, हमें अपने रिजर्व्स को प्रिजर्व करना है, वोलेटिलिटी को धीरे धीरे स्मूदन करना है, और अपनी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है हमें उसको इम्प्रूव करना है। सो दैट हैज़ बीन द अप्रोच हियर, राइट। So please keep a tab on this. Associated topic here is the why the rupee has a capital account problem. So this is important. तो अभी आपने देखा कि जो रुपी है इट इज़ डिक्लाइनिंग नॉट ओनली vis-a-vis डॉलर विद रिस्पेक्ट टू अदर मेजर करेंसीज एज वेल, एंड दिस हैपेंड इन 2024, इट इज़ हैपनिंग इन 2025 ऑल्सो। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। अगर हम अपने करंट अकाउंट की बात करें, ठीक है, इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट, तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। In the last 25 years, we have only 4 years when we had a surplus. तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। Why is this? Because हमारा गुड्स डेफिसिट रहता है, हम गुड्स में डेफिसिट रहते हैं, लेकिन वो ऑफसेट हो जाता है सर्विसेज की वजह से। जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम सफ़र कर रहे हैं। हाउ इज़ दैट हैपनिंग? तो अगर हम बात करें FDI एंड FPI की, तो ये चीज़ अब घट गई है। ठीक है, जहां हम बात करें अगर 2010 तक का जो डिकेड था, देयर वाज ट्रिमेंडस FDI कमिंग लाइक $107 बिलियन इन 2007-8, जबकि 2024-25 में सिर्फ $18 बिलियन आया। ठीक है। Similarly, FPIs, there is net in outflow occurring there. Why is this happening? So there are a number of reasons here. एक तो डाइवर्सिफिकेशन, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर डाइवर्सिफाइंग टू अदर मार्केट्स। दूसरा, अनसर्टिनिटी ओवर रिफॉर्म्स, पॉलिसी अनसर्टिनिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर रिफॉर्म्स। थर्ड, स्ट्रोंगर रिटर्न्स एल्सवेयर, US में हाइयर इंटरेस्ट साइकिल चल रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा इनको लुक्रेटिव लग रहा है। फोर्थ,
हमारा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, सो दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा ग्रोथ है इट इज़ नॉट अट्रैक्टिंग द कैपिटल, the confidence in the Indian this you can say environment, economic environment, that is lacking by the global investors. तो उसकी डायरेक्शन में we need to work. Now privacy concerns over the mandatory संचार साथी installation. तो ये चीज़ though the government has said that it is not mandatory now, फिर भी आपको पता होना चाहिए. तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये DOT ने एक डायरेक्टिव इशू किया कि जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये पर्टिकुलर ऐप संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करनी है न्यू डिवाइसेस में, और जो ओल्ड डिवाइसेस हैं वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसको इंस्टॉल करें. तो गवर्नमेंट का क्या एम था कि इससे डिजिटल फ्रॉड है आपका जो वो कर्व होगा. ठीक है, आपके जो IMEI नंबर्स हैं दे विल गेट वेरीफाइड एंड ऑल्सो इट विल स्ट्रेंथन आवर साइबर सिक्योरिटी. तो ये गवर्नमेंट ने बोला. अब क्या इशू हुआ कि जो ये पर्टिकुलर ऐप है, ठीक है, इससे क्या होता है, व्हाट दिस ऐप डज, कि जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो, अ नंबर ऑफ परमिशंस आर गिवन दैट दिस ऐप विल हैव एक्सेस टू ऑल योर कॉल लॉग्स, SMS, कैमरा, स्टोर्ड फाइल्स, स्पेशली ऑन योर एंड्रॉयड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट emerge out of this. One is function creep. Function creep. Basically, what is function creep? That where an app that is created for one limited purpose, it later expands into broader monitoring. ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे आपके इश्यूज अराइज करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज लैक ऑफ ऑप्ट आउट राइट्स. ठीक है, यूजर डाटा डिलीशन, टाइमलाइन कि कब तक आपका डाटा यूज हो सकता है. ठीक है, कब तक डाटा रिटेन होगा, हमारी कंसेंट. देन लिंक इट विद द KS Puttaswamy 2017 प्राइवेसी टेस्ट कि what were the 3 requirements there, that there should be a legal basis backed by a law, then it should be linked to a legitimate state aim, then there is a proportionality that should occur between the purpose as well as the intrusion. तो वहाँ पर भी ये चीज़ फेल होती है. So अब though it is not no longer in the news because government ने वापस ले ली है चीज़, but still you can use it as a case study, right? Data privacy से related you can use that. Now how polygamy is regulated in India? तो बेसिकली polygamy आपका सामने prohibition of polygamy bill it has passed, becoming the second state after उत्तराखंड. ठीक है, तो हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें बायगैमी दैट इज़ क्रिमिनलाइज्ड. ठीक है, ये आपका क्रिमिनलाइज्ड है. बट जब हम बात करें इन्फोर्समेंट की, सो दैट वेरीज ड्यू टू इंडियाज फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क. तो हमारे पास UCC नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. ऐसे में जो इन्फोर्समेंट लॉज हैं दे वेरी विद डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपका मोर देन वन मैरिज इट इज़ इलीगल. पारसी वाले में भी इलीगल है. इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 ऑल दिस से यस इट इज़ इलीगल. लेकिन आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ इट इज़ एन एक्सेप्शन. तो उसके शरीयत लॉ जो आपका 1937 का एक्ट है, सो द मुस्लिम मैन दे आर परमिटेड टू मैरी अप टू 4 वाइफ्स. ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है. तो अब यहाँ पर क्या किया स्टेट्स ने, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं. उत्तराखंड ने, जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड था, इट हैज़ बैंड बायगैमी फॉर ऑल रेजिडेंट्स. असम ने क्या किया, इट हैज़ क्रिमिनलाइज्ड पॉलीगैमी. फिर उसने अपना पेनल्टीज डाली हैं. ठीक है, नाउ देर फिर आपका एक स्पेशल एक्सेप्शन है गोवा का. सो गोवा का जो सिविल कोड है, सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867. सो दे मैंडेट मोनोगेमी इवन फॉर द मुस्लिम्स. ठीक है, लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है विच अलाउज द हिंदू मैन टू मैरी फॉर अ सेकेंड टाइम अंडर एक्सेप्शनल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल जब आपका कोई मेल हायर ना हो.
ठीक है। फिर आपका जो ट्राइबल्स हैं उनको लेकर एग्जाम्पशंस हैं, लाइक असम में भी, उत्तराखंड में भी, लाइक आपके जो एसटीज हैं, जो 6 शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती। तो ये एक चीज़ है जो आपने ध्यान रखना है वाइल यू आर डिबेटिंग अराउंड यूसीसी, कि कैसे हमारा फ्रेगमेंटेड लॉ, ठीक है, जो फ्रेमवर्क है हमारा डिफरेंट स्टेट्स में, उसकी वजह से कैसे कॉम्प्लेक्स बन रही है सिचुएशन। नेक्स्ट, वाई द नेवी डे मार्क्स द ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो हम नेवी डे मार्क करते हैं दिसंबर 4 को, राइट। सो दिस पर्टिकुलर डेट इट हैज़ बीन चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स। 1944 में हम अक्टूबर 1944 में अक्टूबर 21 को मानते थे नेवी डे, ठीक है। फिर दिसंबर 1 को माना हमने 1945 में, देन दिसंबर 15 को मारा 1972 तक। फाइनली वी शिफ्टेड इट टू दिसंबर 4 टू मार्क द ऑपरेशन ट्राइडेंट विच अकर ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो अब क्या हुआ था, ऑन दिसंबर 3 1971 दिस पाकिस्तान इट लॉन्च्ड प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स ऑन इंडियन एयर बेसिस। तो ऐसे में इंडिया फॉर्मली एंटर कर गया वॉर में, ठीक है। एंड द इंडियन नेवी इट वॉज टास्क्ड विद न्यूट्रलाइजिंग द पाकिस्तानी नेवल स्ट्रेंथ एज वेल एज डिसरप्टिंग द स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ कराची, ठीक है, विच वॉज क्रूशियल फॉर देयर फ्यूल सप्लाईज एज वेल एज मैरीटाइम डिफेंस। तो वहाँ पर इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 4 एंड 5। तो हमने क्या किया, हमारी जो मिसाइल्स थी, ठीक है, सोवियत मिसाइल्स थी, उनका यूज़ किया, एंड वी लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द सरप्राइज अटैक ऑन द कराची हार्बर। तो उसी को मार्क करने के लिए दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन ट्राइडेंट इट वाज लॉन्च्ड, एंड दिस इज बीइंग कॉमेमोरेटेड विद द दिस नेवी डे, ठीक है। कर्नाटका हेट स्पीच बिल, ठीक है। तो अब कर्नाटका हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। तो अब हेट स्पीच से रिलेटेड सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया में ये है कि इट इज़ नॉट फॉर्मली डिफाइंड, ठीक है। हमारा चाहे वो आपका भारतीय न्याय संहिता हो, जो आपका सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी था, कि आप रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हो विद द डेलिब्रेट इंटेंट, ठीक है। उसके बाद आपका यू आर प्रमोटिंग डिसहार्मनी और एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। फिर आईटी एक्ट के अंडर है आरपीए जो आपका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये चीज़ हेट स्पीच इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड, बट डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो कोर्ट्स ने बार बार बोला है देयर इज इनकन्सिस्टेंसी इन एनफोर्समेंट, देयर आर ओवरलैपिंग प्रोविजंस। इवन द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ट्वाइस इन 2017 and 23 it has recommended a clear definition of hate speech, as well as the punishments they should be also be proportionate. तो ऐसे में सवाल उठता है कि इज़ देयर अ नीड फॉर अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन रिलेटेड टू हेट स्पीच इन इंडिया। तो कर्नाटका ने वही चीज़ की है, इट इज़ अटेम्प्टेड टू क्लैरिफाई व्हाट इज़ हेट स्पीच एंड टू क्लोज द गैप्स इन एनफोर्समेंट। सो इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ DRDO's रॉकेट्स लेड इजेक्शन टेस्ट। तो अभी क्या हुआ है कि आपका DRDO ने जो आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ADA, उसके साथ एज वेल एज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इनके साथ मिलकर दे हैव कंडक्टेड अ हाई स्पीड रॉकेट स्लेज इजेक्शन टेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सो दे मेड अप अ मोक LCA, ठीक है, उसको प्रोपेल किया एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर यूजिंग मल्टीपल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स। तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, आपका जो रेलवे नेटवर्क है, ठीक है, उसके ऊपर यू आर यूजिंग रॉकेट्स टू एक्सेलरेट इक्विपमेंट अलोंग अ रेलवे ट्रैक। तो ऐसे में आप वही कंडीशंस रेप्लिकेट कर रहे हो, वही एरोडायनामिक स्ट्रेसेस रेप्लिकेट कर रहे हो, हाई स्पीड कंडीशंस रेप्लिकेट कर रहे हो, जो कि एक्चुअल फ्लाइट के दौरान होता है। ऐसे में जो आपकी सेफ्टी कंडीशंस होती हैं, आपका इजेक्शन सीट हुआ, ठीक है, इंजेक्शन सीट्स, then your canopy severance systems which are basically which help in ejection, ठीक है, एंड द पायलट सर्वाइवल इक्विपमेंट। तो इन सब की क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, क्या वो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों का पता लगता है। एंड दिस इज़ अ डायनेमिक टेस्ट,
इट इज़ नॉट अ स्टेटिक सेफ्टी टेस्ट। डायनेमिक इन द सेंस यहाँ पर आपकी रियल टाइम चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो हाई स्पीड हो, हाई एल्टीट्यूड हो, स्पिनिंग फ्लाइट कंडीशंस हो, इन्वर्टेड फ्लाइंग कंडीशंस हो, वो सब टेस्ट होता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो अभी रिसेंटली इन अ समिट बाय हिंदुस्तान टाइम्स दिस द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेड अ रिमार्क ऑन द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, तो इट वाज अ phrase which was coined by the economist Raj Krishna, ठीक है, and this described India's slow GDP growth rate during the 1950s and 80s, ठीक है। तो ये बोला गया था कि इंडिया का ग्रोथ इट इज़ अनयूजुअली स्लो एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज, एंड दिस इज बीइंग लिंक्ड टू अ रिलीजन। हमारी सिविलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज वी आर हिंदूज, ठीक है। लेकिन व्हाट वाज द रियल फैक्टर्स? द रियल फैक्टर्स वर रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म। देन आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट था, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था, क्लोज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था। सो देयर वाज दीज वर द स्ट्रक्चरल लैक्यूना, नॉट द रिलीजन, ठीक है। सो दिस रिमार्क वाज मेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि ये चीज़ दिखाती है कॉलोनियल माइंडसेट को, ठीक है, कि आपने जो फैक्टर्स जो स्लो ग्रोथ रेट है उसको अपने रिलीजन से लिंक कर दिया, राइट। सो whereas what the reasons that are being given now are कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो लो थी, जो आपका लिमिटेड कंपटीशन था, स्टैग्नेंट ग्रोथ था, वो आपकी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से था, आपकी पॉलिसीज की वजह से था, राइट। नेक्स्ट, वाई इंडिया नीड्स बायो रेमेडिएशन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए दैट बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर हैज़ बिन अ वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर। चाहे हमारी रिवर्स हो, गंगा यमुना, तो वहाँ पर अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं दे आर हाईली एक्सपेंसिव एंड एनर्जी हैवी। अब यहाँ पर बायो रेमेडिएशन आता है। सो बायो रेमेडिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस यूजेस माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स होए, प्लांट्स होए, दे विल बी यूज टू रिमूव, न्यूट्रलाइज एंड कन्वर्ट द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इन योर सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा इनटू हार्मलेस बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं होते हैं आपके बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एक्सेट्रा, दे विल मेटाबोलाइज दीज कंटेमिनेंट्स लाइक ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा इनटू लेस डेंजरस एज वेल एज नॉन लीचिंग फॉर्म्स, ठीक है। तो ये इन सीटू भी हो सकता है जो कि हम कंटेमिनेटेड साइट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रेइंग द ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया ऑन ऑयल स्पिल्स, या फिर एक्स सीटू भी हो सकता है, आप पोल्यूटेड सॉइल या पोल्यूटेड वाटर को साइड से हटाओ, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रीट करो और वापस फिर जहाँ से लेकर आए हो वहाँ पर छोड़ दो। सो बेसिकली दिस इज़ अ लो स्केल, ठीक है, लो कॉस्ट, स्केलेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव, ठीक है। तो दिस इज वाई इट इज बीइंग suggested that India should look for bioremediation. Then global rail network supports UN sustainable transport goals. तो अभी यहाँ पर 2024 ग्लोबल रेल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई है UIC की, विच इज़ नथिंग बट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, एंड इट सेज दैट the railways forms a global network of around 1.17 million kilometers, which is 29 times the circumference of earth, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट ये बोलती है दैट रेलवेज इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशनल पिलर फॉर द UN डिकेड ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट विच इज़ फ्रॉम 2026 to 35, ठीक है। वो कैसे? अब आप देखो रेल वर्सेस अगर हम कंपेयर करें विद अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स, तो रोड ट्रांसपोर्ट इट कंट्रीब्यूट्स 98% ऑफ आपका, चाहे सोशल कॉस्ट हो, एनवायरमेंटल कॉस्ट हो, ठीक है। रेलवे अकाउंट्स ओनली 2%, ठीक है।
The private cars, they have 17 times more external cost per passenger kilometer as compared to high speed railways. Railways also require less land, for example 7 square meter as compared to 100 square meter for the cars. तो ऐसे में the railways, it can be seen as least emission intensive large scale transport system. ठीक है, तो ये अब आपका अराउंड 6% ऑफ ग्लोबल पैसेंजर्स, 38% ऑफ inland freight it is contributing to, and just 1% of the transport emissions. तो ऐसे में there is a need to expand our railway networks, and this will be really useful towards sustainable development. तो ये आपका रिपोर्ट की हाईलाइट है. Why volcanic ash is a flight safety hazard? तो बेसिकली क्या हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस लॉन्ग डोरमेंट volcano by the name of हाईली गुबी, ठीक है, इन द इथोपिया रीजन, इट इरप्टेड आफ्टर 12,000 ईयर्स. तो ऐसे में क्या हुआ, जो आपका वोल्केनिक ऐश था, ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले बताना चाहिए वोल्केनिक ऐश होता क्या है. सो इट इज़ जस्ट नॉट स्मोक, उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सिलिकेट मिनरल्स, माइक्रोस्कोपिक वोल्केनिक गैस, रॉक फ्रैगमेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अदर गैसेज एक्सेट्रा आर देयर. तो ये रिलीज हुआ, एंड these particles they were released up to 14 kilometer height in the atmosphere, and they were then carried by winds which were traveling at a speed of 100-120 kilometers per hour. तो ये सब चीज़ें it moved across the Red Sea or Middle East and entered India's airspace. तो ऐसे में क्या हुआ, then this ash, volcanic ash will obviously be dangerous for the aircraft, चाहे वो इंजन डैमेज को लेकर हो, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी को लेकर हो, इंस्ट्रूमेंट फेलियर को लेकर हो, एयर क्वालिटी को लेकर हो. सो दिस बिकम्स अ एविएशन हैजार्ड. तो ऐसे में DGCA एडवाइजरी इशू करता है एयरलाइंस को दैट दे शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ अफेक्टेड एल्टीट्यूड्स, रीजन्स एक्सेट्रा. दे शुड कंडक्ट प्रॉपर इंजन एंड एयरफ्रेम चेक्स. They should report if these kind of smoke, odor or abnormality is seen in engine behavior. तो ये चीज़ एडवाइजरी इशू हुई थी. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो while you are also preparing for your geography. ठीक है, वोल्केनोज के बारे में जब आप पढ़ते हो, so these kind of points you can drop in your answer. So this is what we wanted to discuss in the today's video with respect to the week 1 current affairs. So in the subsequent video we will be taking the subsequent weeks. Thank you.